Yes, sir. Very good. Now I will start YouTube. Yes, YouTube is already started. You can start now, Nursing sir. Yes, sir. Better. Very good. 75 participants are there. You can start now. Good evening to all. Hello, I am Dr. Anil Narsinghe, Assistant Professor in the Department of Microbiology. Friends, I Dr. Anil Narsinghe on behalf of Department of Microbiology, Yogeshwari Mahavidyalaya Ambajogai. I welcome everyone to this webinar on gene cloning and its application. Thank you all for joining us for today's webinar. The topic of the today's webinar is gene cloning and its applications. We are very fortunate to have joined with us eminent speakers in the field of microbiology, that is Dr. Shweta Pal ma'am, then Dr. S.D. Patankar sir, and Dr. A.M. Deshmukh sir, who is President of Microbiology Society of India. Friends, we are very happy. It gives us immense this webinar, and this webinar it is possible with the guidance and support of Dr. A.M. Deshmukh sir, with the support and guidance of our principal, Dr. Honorable Principal Dr. Joshi sir, and IQAC coordinator Dr. V.S. Hamde sir. Friends, the aim of this webinar on gene cloning, it is to bring together the leading academicians, the scientists, researchers, and students to exchange and share their experiences and research on all aspects of gene cloning and genetic engineering. It also provides an interdisciplinary platform for the academicians and the researchers to discuss the most recent innovations, trends, challenges encountered, and solutions in the field of gene cloning. Dear participants, we, the Department of Microbiology, conducting this webinar, and the Department of Microbiology, it is established in the year 1984. The department it is actively engaged in various curricular, extracurricular, and research activities. The department also has the collaborations with renowned organizations such as the Microbiology Society of India and many such organizations. And with the such organizations, we are actively participating in various activities. We regularly participated in the different activities conducted by the MSI. We participate in conferences, seminars, webinars, various competitions, and it gives us an opportunity to our students and to us to participate and to explore ourselves in this area. The Department of Microbiology, it offers BSc Microbiology. There are 3 faculties in the department. Dr. R.D. Joshi sir, who is HOD and the principal of the college.
Dr. V.S. Hamde sir, who is IQAC coordinator, and myself, Dr. A.P. Narsinghe. The two faculties, that is Dr. R.D. Doshi sir and Hamde sir, they are recognized research guides of the university, and the department also has a research center. More than 16 students, they have completed their PhD degree, and the department also runs a certificate course on the biofertilizers and biopesticides. Dear participants and all the respected teachers and the speakers, it gives us a very great pleasure to conduct this webinar. And now I request the HOD of the microbiology department and the principal of our college to please give a welcome address. So I will hand over to Dr. R.D. Doshi sir. Sir, please give a welcome address. Thank you very much. Thank you, Dr. Narsinghe. Am I audible? Yes, Hello. sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes. Hello. Yes, sir. You are audible. Respected Your video is off, sir. Video is off. Yes, sir. Who is President of Microbiology Society India, Dr. Sanjeev Patankar, Narsinghe, and Nation and Maharashtra, who had participated virtually in this August gathering of webinar, whose heading is Genetic Engineering and its Applications. Now, as Dr. Narsinghe told, Yogeshwari Mahavidyalaya Ambejogai is one of the oldest educational institute in Maharashtra state, which is considered to be the most advanced state in education and technology. So Yogeshwari Education Society has completed more than 100 years. The foundation year of the Yogeshwari Education Society is 1918, and we have passed more than 103 years serving the poorest people and the poorest student at the grassroots level in the rural areas of Maharashtra, specifically in Marathwada. So our college has started initially the science college to inculcate the scientific values and science education to grassroots people. Now our college was established in 1956, that is before Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. Originally it was affiliated to Osmania University, Hyderabad, and after 2 years in 1958, when Marathwada University was established, our college was affiliated to this. We are a single faculty science college with various subjects at undergraduate level and postgraduate level. We are having chemistry, computer science, zoology, and mathematics at postgraduate level. We are in a position to initiate postgraduate courses in microbiology in the current academic year. Moreover, we have research center in microbiology also. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. We can hear you, sir. आवाज येतोय, sir. Yes. Now our current president, Dr. S.T. Kursale, is an orthopedic surgeon who has devoted his life in the development of this education society, Yogeshwari Education Society. Under his able and meritorious guidance, we all are proceeding in the development of the scientific principles and science and technology in this rural area of Marathwada region. Now, the Department of Microbiology is always ahead in conducting the seminars, competitions, and webinars in this COVID area. Now, as you all know, that Dr. Narsinghe has introduced myself, that currently I am HOD of Microbiology plus principal of this college. Our IQAC coordinator, my colleague Dr. Hamde, is also from microbiology, and Dr. Narsinghe, who is active faculty of our college and department, is engaged in conducting and shouldering the responsibility for all the academic, co-academic, and societal activities in microbiology. So in the last 2 NAC accreditations, whatever grade we have, we are very much happy. But both the team leaders in the NAC committee has definitely appreciated the work of Department of Microbiology in the last 2 accreditations of microbiology. Now we are facing, in the near future, within 6 months, we are facing the 3rd cycle for NAC accreditation. So again, I welcome on behalf of
Yogeshwari Education Society and Yogeshwari Mahavidyalaya, I welcome Dr. M. Deshmukh sir, Dr. Sanju Patankar sir, and today's speaker, Dr. Shweta Mishra madam, to this webinar. With these few words, I conclude my speech. Thank you. Thank you very much. Over to Dr. Narsinghe. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for this welcome address. And we are very fortunate to have the eminent speaker for this webinar. And this is possible only due to the support and guidance of the principal, Dr. R.D. Joshi, sir, IQAC coordinator. And I would like to introduce the chief guest of today's webinar, Dr. Sanju Patankar, sir. I welcome you, sir, to this webinar. I would like to introduce the today's chief guest, Dr. Sanju Patankar, sir. Can you hear to me, sir? Yes. Dr. Sanju Patankar. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Dr. Sanju Patankar, sir, is MSc PhD in microbiology. He has worked as associate in the Department of Microbiology at Guru Nanak College of Science, Ballarpur. He was the principal at Shiv Prasad Sadananda Jaiswal College, Arjuni, Morgaon District, Gondia. He has undertaken many minor and major research projects which are funded by the UGC DST. He has published more than 20 research papers in reputed national and international journals. Dr. Patankar, sir, he has been invited as a speaker in different national and international conferences. Sir has authored 2 books. He has formed collaborations with with the National Institute of Nutrition under ICMR, and he has also formed the linkages with reputed industries and organizations. And currently, Dr. Patankar, sir, is serving as the president of Microbiology Society of India, and he is contributing to the field of microbiology. And Dr. Patankar, sir, he is also guiding us. And because of his consistent support and guidance, we are able to conduct such type of activities. Now, I would like to request Patankar, sir, to please address our students. Dr. Patankar, sir, please. So, good evening to all of you, and I am very much thankful to you at the outset. President of MSI, Dr. Deshmukh sir, principal of the college, and head of the Department of Microbiology, Dr. R.D. Joshi sir, Narsinghe sir, then today's speaker, Dr. Shweta Agarwal, who is going to speak on a very important type of the topic, that is gene cloning and its applications. So it is so at this moment, I would like to just say that organizing such webinars, particularly at the College of Ambazogai, and supporting the support and giving this particular knowledge to the grassroots level, it is very, very important, and it is the need of the time that we must know, our students must know regarding the latest technologies like genetic engineering, rDNA technology, and the gene cloning. It is the one of the part of this. So all these technologies, they are much needed for development of our country, particularly in the field of agriculture, and then in the industrial microbiology, pharmaceuticals, and so many environmental microbiology, and different type of the problems can be solved by such type of technologies. Only thing is that by using such or the application of this technology at field level, and at the field level, it is very, very important. The technology must be transferred from lab to land, and technology must go from lab to industry also, where the students have a very important role. Teachers also have important role, and the researchers also have very important role.
just in the just a few minutes back or half an hour back, there was a very elegant program that we have attended. That is what the felicitation of Dr. G.M. Varke sir, who is the founder of High Media Laboratories. And it is the example that how the lab to industry and how lab to land technology transfer can be done, and what miracles can occur if the microbiologist will work in this fashion. I want to recall his words in the two aspects. The very first thing what he said, that you must fly high, that is you must fly above clouds. He has given the example of eagle, that how he fly, and because of that how you can reach to a very top level. And the second important thing he has said in a very intensively manner, that is what the college teachers and the college students, they must come forward by utilizing the different type of the grants, by giving the different type of the projects and so on. Similarly, he emphasized also that simply the publication of paper, it is not the important, but application of your work, it is very, very important. So by using such technologies, that is the recombinant technologies and all other type of the things, your knowledge, you can transfer it to the land level, to the grassroots level, and to the industry level. So I congratulate the entire team of Yogeshwari Mahavidyalaya for organizing such type of the webinar, that is gene cloning and its application, which is the need of which is the today's need for the development and for making the Atmanirbhar Bharat. So there are so many challenges in the genetic engineering, rDNA technology, that the technology is costlier. We have to make it cheaper. We can have the example of High Media Laboratories, that how the media in the previous days, they were expensive, and now how the media, they become cheaper because of what? Because of the work of Dr. Varke. So we must keep such examples in front of our eye, and we must work. So once again, I am thankful to you for inviting me on this occasion and allow to express my thoughts. So I conclude my words with this. Thank you. Thank you, sir. Thank you for a very nice speech, sir. And definitely it has motivated us. It has motivated our students. As you told, sir, the technology, it should be transferred from the laboratory to the land and from the laboratory to the industry. And definitely we will try to adopt it, sir. And we are taking efforts to transfer it into the practical way. Thank you, sir, for your wonderful guidance. Now I'm here to introduce the today's chairperson, Dr. A.M. Deshmukh, sir. I welcome you, sir, on this occasion of National Webinar on Gene Cloning. And we are very fortunate, sir, to have joined with us you as one of the chairperson and the speaker. Sir, these activities and such kind of webinars, they are only possible because of your consistent support and guidance. You are a source of inspiration for us, and Dr. A.M. Deshmukh, sir, he is working to ignite the minds of young and budding microbiologists, and sir has a lot of contributions to the field of microbiology. He is taking a lot of efforts to motivate the young emerging microbiologists, and we are also part of that. Dr. A.M. Deshmukh, sir, he is MSc PhD in microbiology. He has a teaching experience of 31 years. He is currently working as National President of Microbiology Society India. He was also member of BS and other committees in the microbiology in different universities. Dr. Deshmukh, sir, he has been awarded with a fellowship of Biotech Society of India in 2005. He is also life member of Indian Science Congress and Association of Microbiology Society India and many other reputed organizations.
He was a recognized PhD guide by the Shivaji University Kolhapur and Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad. Sir has organized various national and international conferences, webinars, seminars in India and also in abroad. And he has organized the conferences in Bhutan, Sri Lanka, America, Australia. I also got opportunity to participate in one of such conference which was organized in Nepal, and that was wonderful experience for us, and it has motivated us a lot. He has published many research papers, he has written many books, and especially sir has contributed a lot. He has tried to raise awareness among the public during this COVID pandemic time period when the situation it was very worse, and he tried to aware the people regarding the COVID-19 and vaccinations through his YouTube video lectures and the newspaper articles, and we get benefited a lot from these all these things. And the motto of him is that as we are a part of microbiology, we should contribute to the society. Our knowledge and skill should be beneficial to the society, and we are working in this way. So we are able to conduct such activities only because of consistent support and guidance of Dr. M. Deshmukh sir. There is a lot to say about him, but due to time constraint, we are not able to tell. So with this short introduction, I would stop here, and I would like to request Dr. Deshmukh sir to please guide us, sir. Thank you, sir. Dr. Deshmukh sir, please guide us. Thank you. Thank you, Dr. Narsinghe sir, for introducing me. I'm here today only for two things. First is most important thing is to wish all the best as a president of Microbiology Society. It is my duty to wish your college, your team for organizing today's beautiful event. Why I'm telling beautiful event? I know the speaker, Shweta Agrawal ma'am. She is very knowledgeable. We'll be talking on the gene and technology. And today, 100 attendee quota is full. 100 attendee are there. They have joined today's meet. So that's why I am calling it as a beautiful activity organized by your college. And the second thing, why I have joined today, to appreciate your efforts. I know that Honorable Principal of your college, Dr. R.D. Joshi, that one of the eminent professor in microbiology from your college, Dr. Hande, and one who is fully involved in arranging this activity is Dr. Narsinghe. So all of you are very active, dynamic, and always taking an effort to inspire the student, to encourage the student. Today's lecture is a one attempt. So I will not take much time because Shweta Agrawal will be talking in detail. I appreciate the efforts. I assure you, as a president of Microbiology Society, in future, Microbiology Society will be always with your college. You arrange the activities, whatsoever the help required, including financial help, we are ready to give to you. So today I am very happy you are doing work of Microbiology Society. So, and at least few students will get inspired, will update with the knowledge. That's why I am happy today, and I wish all the best to you, to your college, and to your team. Thank you. Thank you.
सर आवाज नाही येते तुमचा. आवाज. Hello. हा, येतोय. Sir, yes, we can see you, we can listen you. Yes, sir. Sorry, sir. There was a net connection problem. Okay. So, thank you, Deshmukh sir, Honorable Deshmukh sir, for giving the few words. Thank you, sir. Introduce today's invited speaker, Dr. Shweta Agarwal, ma'am. I welcome you, ma'am, on this occasion for the webinar on the gene cloning and its application. Dr. Shweta Agarwal, ma'am, is MSc PhD in microbiology from Gujarat University, Ahmedabad, Gujarat. Dr. Shweta Agarwal, ma'am, she is presently working as assistant professor in the Department of Life Sciences at Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, MP. You're not audible, sir. Yes, you are talking through Hamde sir, Yes. because I have muted Hamde sir. Yes, I am talking from Hamde sir's mobile. Okay. Because I as will- there was- so please again unmute it. I have muted Hamde sir. Yes, sir, yes. So Dr. Shweta Agarwal, ma'am, she is working as assistant professor in the Department of Life Science at Vaishnav Vidyapeeth, Indore. She has worked as assistant professor for intellectual property rights and laws at Royal University, Bhutan. She has 14 years of teaching experience at UG and PG level. Dr. Agarwal, ma'am, is a member of BOS at Vaishnav Vidyapeeth, and she is a recognized PhD guide at Vaishnav Vidyapeeth, Indore. Ma'am has published many research papers in national and international conferences. She has also authored many books. She has attended many seminar, conferences, and workshops. And with this, ma'am, we are very much fortunate to have joined with today. You have joined us for this webinar, and we are very much fortunate to listen to this lecture on a very advanced topic, that is gene cloning and its applications. Ma'am, definitely this will enhance the knowledge of our student. And with this brief introduction, I request Dr. Agarwal, ma'am, to start his presentation. Thank you, ma'am. Dr. Agarwal, ma'am, please start your presentation. Thank you, Narsingh sir. And first of all, I'd like to thank Arvind Deshmukh sir, our mentor, Patankar sir, Joshi sir, and all the organizers of this webinar. Without taking much time, I would like to start my presentation on gene cloning and its application. As the students, more of the participants are students. So Narsingh sir, may I use dual language mode? Total English की बजाय अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं. And सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है, तो एक बार उसको ऑन कर दीजिए तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूं. नरसिंह सर, हेलो. Hello, Deshmukh sir.
हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग परमिटेड नहीं है, उसको Yes, yes, ma'am. परमिट कर दीजिए। Ma'am, please wait for 1 minute. श्योर सर। Hello. सर हो गई है। You can share, ma'am. ओके सर। So is the presentation visible? Yes, yes, ma'am. And is it in slideshow mode, sir? Just it will appear, हाँ, but right. I just want to know. yeah, you have shared screen. You have shared. Right, sir. Right, sir. So, okay. So let us start with our presentation. Our today's topic is an introduction to gene cloning and its application. So we might have heard about the word gene cloning, और आज की डेट में कोविड टाइम्स में तो बहुत ज्यादा ही हमने सुना है, क्योंकि वैक्सीनेशन से रिसर्च है या RT-PCR टेस्ट है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हम सुनते आ रहे हैं अबाउट जीन क्लोनिंग। नाउ व्हाट इज जीन क्लोनिंग, पहले हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सो ग्रीक वर्ड के हिसाब से जो वर्ड है क्लोनिंग, क्लोन, दैट इज अ ट्विग, लेकिन उसका साइंटिफिक मीनिंग ये है अ कलेक्शन और मॉलिक्यूल्स और सेल्स, ऐसा मॉलिक्यूल्स या सेल्स का कलेक्शन विच आर ऑल आइडेंटिकल टू एन ओरिजिनल मॉलिक्यूल और सेल। तो ऐसे सेल या मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल से हम समझते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज। सो नेचर में आप बहुत कम ऐसी चीजें देखने मिलती है, लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो एकदम एग्जैक्ट कॉपीज हैं। हम भी हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं, जीन ट्रांसफर होती हैं, हमारी बॉडी में मिक्सअप होती हैं फादर और मदर की जीन, और तब हम बनते हैं। इसलिए ना तो हम फादर से रिजेंबल करते हैं टोटली, ना ही हम मदर से रिजेंबल करते हैं। तो वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। लेकिन जब हमें ऐसे मॉलिक्यूल या सेल्स बनाने हैं लैब में या फिर लाइफ में विच आर आइडेंटिकल, तो वी यूज क्लोनिंग। और जब ये क्लोनिंग लैब में की जाती है या ऐसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स लैब में, तो उसे हम क्लोनिंग बोलते हैं। नेचर में ये चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव सेल्स हैं, स्किन के या आपके बॉडी लाइनिंग के या हेयर के, ये सारे जो सेल्स हैं ये माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, तो ये आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन जो मियोसिस से सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सो ये सिर्फ एक बेसिक था आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए। सो क्लोनिंग बेसिकली
टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिकल सेल्स या मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बनाने की बात करें, जीन, एक जैसी जीन या एक ही जीन की कई सारी कॉपीज या क्लोन्स बनाने की बात करेंगे। सो व्हाई डू यू वांट टू क्लोन डीएनए? डीएनए को क्लोन करने की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहला रीजन है कि मुझे डीएनए की सीक्वेंस पता करनी है। कोई जीन है, जैसे अभी आया हमारा कोविड वायरस, कोरोना वायरस, अब इस वायरस की सीक्वेंस पता करनी है, ताकि वायरस है, छोटा सा है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है, तो उसकी सीक्वेंस, उसका जो भी सेटअप है वो पूरा उसके डीएनए में, उसके आरएनए में है। तो उसकी सीक्वेंस अगर हम पता करते हैं तो वायरस की प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं, कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है वो पता कर सकते हैं, बीमारी स्प्रेड कैसे होगी ये जान सकते हैं, और उस बीमारी को रोका कैसे जाए वो हम डिजाइन कर सकते हैं। वैक्सीन बनानी है तो उसके लिए हमें सीक्वेंस की जरूरत है। होमोलॉजी सर्चेस, होमोलॉजी मींस ये वायरस किस दूसरे वायरस से मिलता जुलता है, ताकि अगर पहले से मार्केट में उसके लिए कोई दवाई, कोई वैक्सीन अवेलेबल हो तो हम उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट या थेरेपी स्टार्ट कर सके। देन रेगुलेशन, किसी जीन को हमें रेगुलेट करना है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज इज अगेन रिलेटेड टू हमारी जीन, जहां पर इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो उस जीन को आइडेंटिफाई करना, उसकी एनालिसिस करना और डायबिटीज को रोकने के लिए उस हिसाब से कोई दवाई बनाना, वैक्सीन बनाना, या फिर जीन थेरेपी की बात होती है आज की डेट में कि कहीं कोई जीन अगर हमारी बॉडी में डिफेक्टिव है तो उस डिफेक्टिव जीन को हटा दिया जाए और बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनल जीन वहां लगा दी जाए। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब हम जीन्स को समझ सके, और स्टडी करने के लिए, समझने के लिए जीन के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और जीन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लैब में उस जीन की मल्टीपल कॉपीज होना जरूरी है, और यही मल्टीपल कॉपीज जीन की हमें मिलती है क्लोनिंग से। सो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से हम डीएनए को क्लोन करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उस जीन से कौन सा प्रोटीन बनता है, कौन सा एंजाइम बनता है, कौन सा आरएनए जो इस वजह से फंक्शन करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्लोनिंग करके ही हम स्टडी कर सकते हैं लैब में। म्यूटेशन, जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, मैल फंक्शन है, उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए म्यूटेशन वगैरह को स्टडी करने के लिए भी हमें जीन के मल्टीपल कॉपीज चाहिए जो कि क्लोनिंग से मिलते हैं। एंड फाइनली अप्लाइंग दिस क्लोन डीएनए प्रोडक्शन के लिए मल्टीपल कॉपीज, जैसे वैक्सीन है या कुछ भी ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर जीन थेरेपी के लिए बहुत सारी जीन्स चाहिए जो हमारे सेल्स में जाके डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करेंगी, या कुछ भी ऐसा काम है जहां पर जीन थेरेपी है, प्रोडक्शन करना है मल्टीपल कॉपीज का। आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे आपके, जहां पर डीएनए को अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, या जहां पर आपको प्राइमर डीएनए एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ऐसा कहीं पर भी जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना हो डीएनए मॉलिक्यूल्स का, आरएनए मॉलिक्यूल्स का, तब ये टेक्निक यूज की जाती है। तो दिस इज द रीजन यहाँ पर हम क्यों डीएनए को क्लोन करते हैं। सो दीज आर सम रीजंस। नाउ हाउ एक्चुअली डीएनए इज क्लोन। सो बेसिकली डीएनए क्लोन करने के दो बेसिक तरीके हैं, हम ब्रॉडली उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। आपको पता है डीएनए की क्लोनिंग के लिए हम जो सिंपल एक्सपेरिमेंटल चीज है दैट इज, या प्रोसेस है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा 10th 11th 12th बीएससी में भी, कि डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, 2 से 4। तो जब सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है हम उसे डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसी नॉर्मल प्रोसेस को यूज करके हमें जिस जीन की कॉपीज बनानी है, जिस जीन की क्लोनिंग करनी है, उसको हम किसी सेल, लिविंग सेल के अंदर पहुंचा दें और वहां पर जो रेप्लिकेशन एंजाइम्स हैं वो उस जीन को रेप्लिकेट कर दें और जीन की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। सो दैट इज सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। अब ऐसे सेल्स प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। नॉर्मली सबसे कन्वीनियंट है डील करना बैक्टीरियल सेल्स से, क्योंकि हम उनको इजिली लैब में कल्चर कर सकते हैं। एनिमल और प्लांट सेल्स जो है वो थोड़ा सा प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स थोड़ी सी कॉस्टली और थोड़ी सी टीडियस है। सो मोस्टली बैक्टीरियल सेल्स यूज किए जाते हैं। तो जिस भी जीन की हमें कॉपीज बनानी है उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। बैक्टीरियल सेल के एंजाइम्स उस जीन को रेप्लिकेट करते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं, क्लोन कर देते हैं उसको। और दूसरा तरीका जो थोड़ा सा इंस्टेंट है, एडवांस्ड है, फास्ट है, रैपिड है, दैट इज सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। यहाँ पर हम सेल्स यूज नहीं करते हैं, ऐसी छोटी छोटी वायल्स होती हैं, उसमें कुछ हम चीजें, रिएजेंट्स मिक्स करते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, और वहां पर जो है एंजाइम्स जो है यहाँ पे हम डालते हैं इस वायल में, साथ में हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम वो मल्टीपल कॉपीज बना के देते हैं। सो दैट इज सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, जिसको हम पीसीआर भी बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज जैसे उसका नाम बता रहा है, पॉलीमरेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम।
वो एंजाइम जो सेल के अंदर होता है उसे निकाल लिया गया है सेल में से और इस वायल में, छोटी सी वायल में ऐड कर दिया जाता है, तो वो डीएनए को रेप्लिकेट करता है प्रोसेस वही डीएनए रेप्लिकेशन वाला स्टेप जो एक टेस्ट ट्यूब में या एक वायल में किया जाता है। Now, how this cloning is done? तो steps to DNA cloning में जो सेल बेस्ड क्लोनिंग है उसमें जो स्टेप्स हैं वो हम बात करते हैं शॉर्ट में। सो फर्स्ट स्टेप इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड क्लोनिंग वेक्टर। जिस भी जीन को मुझे क्लोन करना है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, पहले मुझे उसे लोकेट करना पड़ेगा कि नेचुरली वो जीन कहाँ अवेलेबल है। अभी पूरे वेबिनार के दौरान, इस लेक्चर के दौरान आई विल बी यूजिंग डायबिटीज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन हार्मोन प्री सिंथेसिस के लिए, मैं उसका एग्जांपल यूज करने वाली हूँ। तो मान लेते हैं ये हमारा जो है फॉरेन डीएनए जो जीन है वो मैंने आइसोलेट किया। अब ये जीन मुझे कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन बॉडी के सारे सेल्स में नहीं, मैं इसे स्पेशली पेनक्रियाज जो है जहां पर इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज होता है उनके सेल्स हैं जिनका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहां पर ये जीन एक्टिवेटेड है। तो उन सेल्स को तोड़ करके उनका डीएनए निकालूंगी और डीएनए में वो जगह मार्क करूंगी जहां पर वो जीन है और उस जीन को कट करके निकालूंगा। अब ये कैंची से नहीं काट सकते क्योंकि आपको पता होगा डीएनए बहुत ही छोटा होता है, धागे भी जो होते हैं जिनसे हम कपड़े सिलते हैं वो धागे भी फिर भी दिखते हैं, डीएनए तो फिर भी नहीं दिखता है। तो वी यूज सम एंजाइम्स जिनको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, वो डीएनए को स्पेसिफिकली कट करते हैं और उस पर्टिकुलर जीन को निकाल लेते हैं। सो ये हमारा फॉरेन डीएनए ये एनिमल सेल में, होप माय कर्सर इज विजिबल। सो ये जीन है, यहाँ से हमने ये जीन निकाल ली है, सिर्फ उतनी जीन, बाकी का डीएनए हमारे काम का नहीं है। तो सिर्फ उतना जीन का पीस हमने ऐड किया एक प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड वेक्टर इसको हम बोलते हैं। नेचुरली प्लाज्मिड्स के बारे में आपने सुना होगा, बैक्टीरियल सेल्स हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जिनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये प्लाज्मिड्स छोटे से स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, बट इनमें एक खास बात यह है कि इनका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भले ही रेप्लिकेट हो या ना हो, दे कैन रेप्लिकेट और साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रेप्लिकेट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लाज्मिड के साथ ऐड करेंगे हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट और उनको हम दोनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसमें हमारी जीन है। वेक्टर इन्हें इसलिए बोलते हैं कि एक कैरियर के जैसे एक्ट करते हैं, ये हमारी जीन को बाहर, सेल के बाहर से बैक्टीरियल सेल के अंदर लेकर जाते हैं, व्हीकल के जैसे काम करते हैं। सो वी एडेड टू द क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट ये हमको मिले हमारे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर में आपको प्लाज्मिड मॉलिक्यूल शो किया हुआ है और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में आपको जीन शो की हुई है। तो ये जीन हो गए। अब हमारा जो वेक्टर है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है और हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो इनको ऐड किया, जैसे हम बोलते हैं लाइगेशन। लाइगेशन मीन्स एडिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड वेक्टर को ऐड करना। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपने सुना होगा, ग्रिफिथ ने सर्च किया था ये चीज। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा स्टेप है जहां पर बैक्टीरियल सेल के मेम्ब्रेन में हम पोर्स डेवलप करते हैं और इन पोर्स या होल्स के थ्रू ये जो बाहर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं। अदरवाइज सेल, बैक्टीरियल सेल के बाहर सेल वॉल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें से हर चीज ऐसे अंदर बाहर बिना परमिशन के नहीं आ जा सकती है। तो छोटे छोटे पोर्स डेवलप करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जिन पोर्स के थ्रू प्लाज्मिड जो मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो यहाँ ये आपको दिख रहे हैं सेल्स, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर में उनकी बाउंड्री शो की हुई है और लाइट ऑरेंज में ही उनका क्रोमोसोमल डीएनए शो किया हुआ है। हमारा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है प्लाज्मिड मॉलिक्यूल वो लाइट ब्लू कलर में शो किया हुआ है और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच गया है। अब कुछ सेल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें वेक्टर नहीं पहुंचा, उनमें जो पोर्स हैं वो खुले ही नहीं या खुले वेक्टर अंदर जाता उसके पहले ही बंद हो गए। तो इन सेल्स को हमको अलग करना पड़ेगा, ऐसे सेल्स जिनमें वेक्टर है वो अलग और ऐसे सेल्स जिनमें वेक्टर नहीं पहुंच पाया है उनको अलग करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज सिलेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। एक यहाँ पर जो एग्जाम्पल शो किया है जिसे बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं हमारे उनको हम दो कलर में, ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें जीन है जो हमें इन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जिन सेल्स के पास ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है तो दे विल स्टेन ब्लू और बाकी के जो है वो दे विल स्टेन एज व्हाइट। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन कॉलोनीज को हम पिक करेंगे जिनमें के वेक्टर है, जिनमें वेक्टर नहीं है उन कॉलोनीज को हम छोड़ देंगे। तो जैसे आप लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं तो जो कॉलोनी आपको चाहिए उसमें से सेल्स पिक करते हैं, वी ट्रांसफर इट टू अ शेक फ्लास्क जहां पर न्यूट्रिएंट्स हैं जो इन रिकॉम्बिनेंट सेल्स
रिकॉम्बिनेंट सेल्स उनको बोलते हैं जिन सेल्स में हमारी ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स हैं, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि इंसुलिन की जीन बैक्टीरियल सेल के पास नॉर्मली नहीं होती है, बैक्टीरियल सेल्स को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसुलिन जीन ह्यूमन बॉडी में मिलती है और इस ह्यूमन बॉडी की जीन को हमने ट्रांसफर किया है बैक्टीरियल सेल्स में, तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है। ऐसे सेल्स जिनमें अननेचुरल जीन्स हैं या मॉडिफाइड जीन्स हैं उनको हम रिकॉम्बिनेंट सेल्स बोलते हैं, और इन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को नॉर्मली लैब में हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल सेल्स को ग्रो करते हो, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट मीडिया, मैकॉन्ग के ब्रॉथ ऐसे मीडिया यूज करके, तो नॉर्मल शेक फ्लास्क में हम ग्रो कर सकते हैं विद सम स्पेशल कंडीशंस आल्सो। और ऐसे करके अब ये सेल्स खुद ग्रो होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, इनके अंदर जो हमारा वेक्टर है वो भी मल्टीप्लाई होगा। बाद में इस सेल्स जो फ्लास्क है इसमें से हम सेंट्रीफ्यूज करके सेल्स को अलग कर सकते हैं, सेल्स को लाइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और उसमें से उनका क्रोमोसोमल डीएनए अलग करके हमारा जो वेक्टर डीएनए है उनको अलग कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे हजारों सेल हैं यहाँ पर, हमारे 2, 4, 5, 10 जो हमको कॉलोनीज मिली थी उसमें से हमको करोड़ों सेल्स मिले हैं इस फ्लास्क में, और इस फ्लास्क में से हम सेल्स को रिमूव कर सकते हैं, सेल्स को लाइज करके उसमें से प्लाज्मिड डीएनए अलग कर सकते हैं। प्लाज्मिड, अब यहाँ पर थोड़े ही प्लाज्मिड्स थे, अब हमारे पास बहुत सारे प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स हैं, और इन प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स में से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर सकते हैं। क्योंकि जो प्लाज्मिड है वो डीएनए रेप्लिकेशन से बना है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, तो इसलिए एग्जैक्ट कॉपी मिलेंगी हमको हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, और कई सारी कॉपीज मिलेंगी। लेकिन ये बहुत ही थोड़ा सा टीडियस स्टेप है, लंबे स्टेप्स हैं। मीडिया प्रिपेयर करो, फिर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डेवलप करो, फिर उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचाओ, फिर बैक्टीरियल सेल को कल्चर करो, तो इट टेक्स डेज, और कई बार तो महीनों लग जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे रिकॉम्बिनेंट सेल्स इतनी आसानी से नहीं मिलते, ब्लू व्हाइट कॉलोनीज जो है वो आसानी से नहीं मिलते। That's why this is a quite tedious job. अब इस टेक्निक का एक अपडेशन या एक नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज वन स्टेप मेथड अवेलेबल है आज की डेट में, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर, विच मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज जैसे उसका नाम बता रहा है, पॉलीमरेज इट स्टैंड फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए को रेप्लिकेट करता है सेल के अंदर, उसको हमने कुछ सेल्स में से बाहर निकाल लिया है और सिर्फ एंजाइम को हमने ले लेंगे हम इस रिएक्शन के लिए, सो वी कॉल इट एज पॉलीमरेज रिएक्शन। देन चेन इसलिए क्योंकि देयर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स, क्या है वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, और रिएक्शन क्योंकि बहुत सारी चीजें साथ में हो रही, सो वी कॉल इट एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। Now what is this polymerase chain reaction? उसको समझने के लिए पहले हम ये बात करते हैं कि what are its ingredients. So पहला इंग्रेडिएंट है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी जीन की कॉपीज बनानी है, किस जीन को क्लोन करना है। जैसे अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी, हम वही जीन ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, वही जीन, वही पीस ऑफ डीएनए जिसमें वो जीन है। देन दूसरी चीज जो हमें चाहिए, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज फ्रॉम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज म्यूट देयर माइक, please their mic, put your mic on switch off mode. थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो थोड़ा सा टेम्परेचर को टॉलरेट हो। आपको पता है जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, और प्रोटीन्स टेम्परेचर को सेंसिटिव होते हैं। तो जब हम पॉलीमरेज रिएक्शन में, पीसीआर रिएक्शन में टेम्परेचर हाई लेके जाते हैं, तो डीएनए एंजाइम है वो डीनेचर ना हो जाए, एंजाइम डीनेचर हो गया तो रिएक्शन वही रुक जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है प्राइमर। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जब वो डीएनए को रेप्लिकेट करता है तो स्टार्टिंग से नहीं कर पाता है। पहला जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ऑब्वियसली एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके ऑपोजिट जो है न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करेगा वन बाय वन, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स खुद नहीं लगा पाता। हाँ, थोड़े से 4-5 न्यूक्लियोटाइड्स एड अप हो तो उसके आगे वो चेन को बढ़ा सकता है। जैसे एक एग्जांपल डेली लाइफ से मैं देती हूँ कि इररिलेवेंट एग्जांपल है, जस्ट सिर्फ समझने के लिए, कि जब कभी कोई किसी बड़ी बिल्डिंग का या किसी भी चीज का इनॉग्रेशन होता है तो फाउंडेशन स्टोन, जो पहला नींव का पत्थर है, उसको रखने के लिए किसी स्पेशल व्यक्ति को बुलाया जाता है। बाकी का कंस्ट्रक्शन भले ही मजदूर कर दें, लेकिन जो नींव का पत्थर है वो कोई और रखता है। वैसे ही है कि डीएनए रेप्लिकेट जब होता है तो पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं लगा पाता है, तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अगर लगे हुए उसको मिल जाए तो आगे वो रेप्लिकेशन फिर इजिली कर लेता है। तो ये जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा सा पीस है डीएनए का, उनको हम बोलते हैं प्राइमर्स। अब प्राइमर्स डीएनए में अटैच होंगे, यहाँ पे 2 कलर के शो किए हैं, ये क्यों शो किया है वो मैं आगे बताती हूँ। देन अब
जो डीएनए है वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हम ऐड करते हैं, क्योंकि डीएनए है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इसलिए इनको हम लिखते हैं डीएनटीपीज। अब डीएनटीपीज एन क्यों लिखा है, एन इसलिए कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एडिनाइन हो सकता है, ग्वानाइन हो सकता है, साइटोसाइन हो सकता है, थायमिन हो सकता है। तो डीएनटीपी इसलिए कि डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, एन इज फॉर जनरल, एडिनाइन, ग्वानाइन, थायमिन, साइटोसाइन चारों में से किसी के लिए भी रिप्रेजेंट करता है, तो डीएनटीपी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब ट्राइफॉस्फेट इसलिए कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, तो ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट निकलते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे आपको पता है कि एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए को बॉन्ड बनाने में हेल्प करती है, न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ज्वाइन करने में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ज्वाइन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर इसलिए डीएनटीपीज लिए जाते हैं, लेकिन एडअप होता है सिर्फ मोनोफॉस्फेट, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, एनएमपीज ऐड होते हैं। एक और चीज जो लगती है दैट इज बफर, जो एंजाइम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करता है। इन सारी चीजों को एक छोटे से वायल में, एपेंडॉफ ट्यूब बोले या सेंट्रीफ्यूज वायल बोले, उसमें हम ऐड करते हैं, एंड दिस वायल इन देन केप्ट इनटू थर्मल साइक्लर या पीसीआर मशीन बोलते हैं जिसको हम। ये जो पीसीआर मशीन है ये स्पेशली डिजाइंड है, इसमें कुछ नहीं, हमें वायल को रखना है सिर्फ इसके अंदर, लिड को ओपन करके और इस वायल में रख दिया जाता है, और यहाँ पर फिर टेम्परेचर, ये मशीन कुछ नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर टाइम से ऊपर नीचे करती है। आपने बोला जो अलग अलग टेम्परेचर है पर्टिकुलर टाइम के लिए, 92 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट, फिर उसको रिड्यूस करना है जो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, तो ये मशीन सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस थर्मल साइक्लर, ये पूरी रिएक्शन में होता क्या है, सो विल स्टडी विद दिस स्मॉल एनिमेशन। तो रिएक्शन में हमने ये सारी चीजें डाली थी, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, प्राइमर्स थे, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर ऐसे शो किया हुआ है। नाउ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हमने ऐड किए थे। सो इनिशियली जो टेम्परेचर इट इज रेज टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए हमने थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लिया था जो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके डीनेचर ना हो। देन यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। अब इस टेम्परेचर पर जो डीएनए है उनके जो दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो गई, जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे इनके वो मेल्ट हो गए हैं। अब नाउ दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड हैं ये दोनों, ताकि इनके ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो सके और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनको जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज कर सके। नाउ एज यू ऑल नो डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही चलता है, तो ये वाली स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में रेप्लिकेट होगी और नीचे वाली स्ट्रैंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेट होगी, तो 5' to 3'। अब हमने बात की थी the temperature is reduced to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर पर जो प्राइमर्स हैं, जो हमने बोले जो एक बेस के जैसे काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, सो दीस प्राइमर्स विल अनिल, इनको हमने 2 कलर में शो किया था। एक प्राइमर जो 5' to 3' डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करवाएगा, फॉरवर्ड प्राइमर, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रैंड पे रेप्लिकेशन कराएगा उसे हम बोलते हैं रिवर्स प्राइमर। ये प्राइमर्स अनिल होंगे। ये जो प्राइमर की बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होंगी। प्राइमर से इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इस जीन में उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एडेनाइन के ऑपोजिट थाइमिन, ग्वानाइन के ऑपोजिट साइटोसाइन, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये यहाँ पे आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से यहाँ बाइंड होते हैं, और इनकी जो बाइंडिंग है इस स्टेप को बोलते हैं एनीलिंग स्टेप, प्राइमर एनीलिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अगेन टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 72 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डीएनटीपीज जो डाले हुए थे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन करता है, और इस 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टू रेप्लिकेट द डीएनए। ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करके, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जगह जगह पर अटैच करके, इस पहले एक ही डीएनए मॉलिक्यूल था, एग्जांपल में अभी हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल शो किया है, तो इस एक डीएनए मॉलिक्यूल से नाउ एट द एंड ऑफ दिस स्टेप यू हैव 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट हो गया, या डीएनए की कॉपी बन गई, या डीएनए क्लोन हो गया। जब हमने वायल में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली थी तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं डाला था, हमने 15, 20, 50, 100 मॉलिक्यूल डाले थे, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे डबल हो गए। ठीक है, 50 डाले थे तो 100 हो गए, 100 डाले थे तो उसके डबल हो गए। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे इस तरीके से ये सिंगल स्टेप में ये सारी प्रोसेस हुई। ठीक है, सो टेम्परेचर को सिर्फ थर्मल साइक्लर में वो जो टेम्परेचर है 92, देन 55, 72, ये सारा जो ऊपर नीचे टेम्परेचर है वो किया उस थर्मल साइक्लर मशीन में, और ये सारी रिएक्शन ऑटोमेटिक अपने आप हुई। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, जहां पे पहली साइकिल, इसे पहली साइकिल बोला जाता है। टेम्परेचर लेके जाना 95, फिर 55 एंड 72, ये 3 टेम्परेचर पे लेके जाना, दैट इज 1 साइकिल। और उस एक साइकिल के बाद एक डीएनए मॉलिक्यूल से हमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिले हैं।
तो डीएनए की क्लोनिंग हो गई, उसकी कॉपीज बन गई। सो दिस इज फर्स्ट साइकिल जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम टेम्पलेट डीएनए बोल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप वाज डीनेचुरेशन, जहां पर दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुई। सेकेंड स्टेप इज प्राइमर अनीलिंग, यहाँ पर दोनों प्राइमर्स अनील हुए। और थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन स्टेप, जहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इस डीएनए की सीक्वेंस को रेप्लिकेट किया, ठीक है, उसका पूरा रेप्लिकेशन किया। तो इस तरीके से अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल था तो हमें एक साइकिल के बाद में 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिले। फिर यही टेम्परेचर ऊपर नीचे जो हुआ है वो फिर से किया जाएगा, अगेन उस साइकिल को रिपीट किया जाएगा, तो जिसमें फिर से डीनेचुरेशन होगा, एनीलिंग होगी और एक्सटेंशन होगा। तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल से हमें 4 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। थर्ड साइकिल के बाद विल गेट 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स, 8 के बाद विल गेट 16, और ऐसे करके जब इसी 30 साइकिल्स हम चला चुके होंगे, सो आफ्टर दिस 30 साइकिल्स वी विल गेट अबाउट 10 to the power 9 कॉपीज ऑफ द डीएनए, मिलियंस ऑफ कॉपीज मिलेंगे। तो यहाँ पर पीसीआर मशीन सिर्फ टेम्परेचर ऊपर नीचे कर रही है, आपने जो टाइम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग, 2 मिनट्स, 1 मिनट, सेकेंड, सम, और 30 साइकिल्स के लिए बार बार वो ऐसे ऊपर नीचे करती है टेम्परेचर, और ये रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है। और इस रिएक्शन के बाद 30 साइकिल्स के बाद यू गेट अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 9 कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने डाले थे, मिलियंस ऑफ कॉपीज आपको मिली। सो दिस पीसीआर मशीन एक्चुअली इन फैक्ट इट एक्ट्स एज अ जेरोक्स मशीन। जैसे आप जेरोक्स मशीन में एक पेपर रखते हो और उसकी मल्टीपल कॉपीज आप निकाल सकते हो, वैसे ही वर्चुअली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी जीन हमने डीएनए उसमें डाला है उसकी मल्टीपल कॉपीज हमें पीसीआर साइकिल के बाद मिलती है। सो दीज मल्टीपल कॉपीज को फिर हम स्टडी करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ coming to the advantages of this reaction. So what are the advantages of this PCR reaction? So first step is sensitive, ये काफी sensitive है, जो भी आप जीन डालेंगे जितनी भी माइन्यूट है उतना एग्जैक्ट कॉपीज आपको मिलेंगी, देयर वोंट बी एनी हैसल, और आराम से आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिव है, आपका काम काफी इंस्टेंटली हो रहा है, जो भी रिएजेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो मिनिमम क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं। म्यूएल्स में हम ऐड करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनटीपीज, तो हार्डली 1 ml या 100 का जो रिएक्शन सिस्टम होता है वायल में बहुत छोटा सा ही पोर्शन आता है, तो उतने कम चीजों में आपका काम हो रहा है, सो दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट इट इज रैपिड, जल्दी काम हो रहा है। जो हमने सेल बेस्ड क्लोनिंग देखी थी उसमें दिन लग रहे थे, हफ्ते लग रहे थे, ये बिल्कुल 4 घंटे 2 घंटे में काम हो जाता है, न्यू ऑन आर फ्री आफ्टर दैट। तो आपको इंस्टेंटली आपकी रिएक्शन के जीन की मल्टीपल कॉपीज मिलती है विद इन आवर्स। डिटेक्शन विद लेस सैंपल, आपका जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है वो म्यूएल में हो, बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, तो भी आप उसको यूज कर सकते हो। अभी आगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी ये जीन क्लोनिंग यूज करते हैं। तो कहीं किसी क्राइम सीन पर थोड़ा सा भी ब्लड स्टेन है, किसी ने मर्डर किया है, तो मर्डर जो ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल में से आप उस पर्सन का डीएनए निकाल लीजिए और डीएनए को इस पीसीआर मशीन के थ्रू उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लीजिए, और फिर आप उसको हर सस्पेक्ट से आप मैच कर सकते हैं। जितने भी आप डिटेक्टिव सीरियल्स देखते होंगे जो टीवी पे आते हैं, तो उसमें यही टेक्निक यूज की जाती है। तो डीएनए को आप मल्टीपल कॉपीज बना के डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। नाउ एक्यूरेसी, दिस मेथड इज एक्यूरेट, क्योंकि जो जीन है वो एग्जैक्टली कॉपी हो रही है। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपने सबको डाला, उतना पोर्शन आपका एम्पलीफाई हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है, तो एरर्स के चांसेस कम है। सो दिस टेक्निक इज एक्यूरेट आल्सो। then some of coming to the applications of this technique daily life में हम जो applications देखते हैं, तो first application is diagnostics। आज की डेट में माइक्रोबी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना है, किसी जेनेटिक डिजीज को डिटेक्ट करना है, किसी कैंसर को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप जीन की मल्टीपल कॉपीज बना लीजिए। जो आपकी मल्टीपल कॉपीज हैं उनको जो पेशेंट है उसके डीएनए से मैच कर लीजिए। तो आप बोल सकते हैं जैसे आपके आरटीपीसीआर टेस्ट थे आज की डेट में, वायरल डिटेक्शन, जो कोविड-19 के डिजीज के डिटेक्शन के लिए यूज किया, आपका जो नेजल स्वैब है वहां से वायरस का डीएनए सैंपल वायरस निकाला, वायरस को लाइज करके उसका डीएनए आरएनए जो भी है वो निकाल के उसको जो ऑपोजिट उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वाला जो सैंपल है बना के रखा है कि हाँ वायरस का डीएनए ये होता है, आरएनए कोविड वायरस का डीएनए ये है, उससे मैच कर लिया। अगर डिजीज है पेशेंट को तो मैचिंग होगी, दोनों डीएनए हाइब्रिडाइज होंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंटारिटी के बेसिस पर इस तरीके से वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही किसी भी बैक्टीरिया को फूड में डिटेक्ट करना है, फूड सैंपल में डिटेक्ट करना है वायरस को, कहीं कोई क्लोस्ट्रीडियम का बोटेलिनम का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज को डिटेक्ट करना है, किसी कैंसर का डिटेक्ट करना है कि फ्यूचर में जाकर जो है
वो डिजीज होंगे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए जीन BRCA1 है, उसको डिटेक्ट करना है, तो ये सारे डायग्नोस्टिक्स में इस पीसीआर टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। तो इस पीसीआर डिटेक्शन के लिए हमें चाहिए वो सैंपल जीन, तो सैंपल जीन की मल्टीपल कॉपीज, तो वो हम क्लोनिंग से या पीसीआर से बना सकते हैं। फूड में क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल जो है, वहां पर पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काउंट करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है कि नहीं फूड में, या फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं, पर्टिकुलर जीन है कि नहीं उस फूड में, अगर है तो डिटेक्ट करना है। तो हमें अगेन किसी भी जीन को डिटेक्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन होनी चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन की मल्टीपल कॉपीज होनी चाहिए आपके पास, तो वो आती है पीसीआर से। एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल में बताया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी है, मर्डर साइट पे आपको कुछ ब्लड मिला है, स्पूटम सैंपल मिला है, रेप केस में सीमन सैंपल है, पैटर्निटी डिस्प्यूट है, तो वहां पर आप पेशेंट का जो क्रिमिनल है और सस्पेक्ट है, क्राइम सीन पर जो आपको सैंपल है और जो आपका सस्पेक्ट है, उनका डीएनए मैच कर सकते हैं। डीएनए मैच करने के लिए अगेन जो आपके पास सैंपल कम क्वांटिटी में, उसको आप पीसीआर की हेल्प से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं, और फिर हाइब्रिडाइजेशन करके या मैचिंग करके आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन सस्पेक्ट है या नहीं है। ड्रग डिस्कवरी, नई ड्रग्स बनानी है, वैक्सीन बनानी है, जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस की वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन के लिए आपको कोरोना वायरस की जीन को स्टडी करना पड़ेगा। इतना सारा वायरस कहाँ से लाएं, तो उसको लैब में जो भी थोड़े बहुत वायरस का सैंपल है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसका डीएनए आरएनए और उनकी जो स्टडीज है वो की जाती है, और उसके बेसिस पर वैक्सीन को डिजाइन किया जाता है, या नई ड्रग्स बनाई जा सकती है, नई दवाइयां बनाई जा सकती हैं कि पर्टिकुलर दवाई या पर्टिकुलर वैक्सीन उस पर्टिकुलर वायरस पर इफेक्टिव होगी या नहीं। ये लैब में सारी टेस्टिंग इसके बेसिस पे की जा सकती है। जीन थेरेपी, वैसे ही मैंने बताया कि ट्रीटमेंट करना है किसी जेनेटिक डिजीज का, तो आपको डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करना है विद द इफेक्टिव जीन, तो वो डिफेक्टिव जीन को हटाने के लिए आपके पास इफेक्टिव जीन की कई सारी कॉपीज होनी चाहिए, जो आपको जीन क्लोनिंग या पीसीआर के थ्रू मिलती है। Another application is microbial surveillance, किसी पैथोजन को फाइंड आउट करना है, किसी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काउंट करना है, या इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट करना है, तो वो सारे माइक्रो, या कोई आपने मार्स से मान लेते हैं सॉइल सैंपल आया है, उसमें देखना है कौन से बैक्टीरिया है, तो उन बैक्टीरिया का आप डीएनए निकाल सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मार्स पे कौन सा बैक्टीरिया है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरस है, फंजाई है, क्या है, तो उन सारे के डिटेक्शन के लिए भी हम उनका डीएनए यूज कर सकते हैं। तो मार्स से तो थोड़ा सा ही सॉइल सैंपल आया था, बैक्टीरिया भी थोड़े से ही थे, उनके डीएनए को पहले हम एम्पलीफाई कर सकते हैं और उन पर स्टडीज कर सकते हैं, तो ये सब पीसीआर के हेल्प से पॉसिबल होगा। देन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस स्टडी करना है, तो जितनी भी इवोल्यूशनरी स्टडी है, आपने कोई लैब में काम कर रहे थे, आपको कोई नया बैक्टीरिया मिला या कोई नया वायरस, जैसे अभी आया कोविड वायरस, और ये पता करना था कि ये वायरस किस दूसरे वायरस से मिलता जुलता है, या इसका इवोल्यूशन ट्रैक किया कि वहां पर चाइना में इट केम फ्रॉम बैट्स, या यहाँ से जंप किया, या हम इबोला वायरस के लिए बोलते हैं कि वहां से इवॉल्व हुआ है, रीजस मंकी से आया, या जो वॉट एवर इट इज, जो उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी भी बैक्टीरिया के वायरस की फाइंड आउट करनी है, तो वो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, नई नई जीन्स डिजाइन करनी है, प्रोटीन्स डिजाइन करने हैं। आज की डेट में हम बात करते हैं साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस, जहां पर एक पर्टिकुलर जीन में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को चेंज किया जाता है, तो ऐसी कुछ जीनोमिक या प्रोटियोमिक पे स्टडी है, जहां पर नोवेल जो जीन्स है उनको डिजाइन किया जाता है। मॉडिफाइड प्रोटीन्स डिजाइन किए जा रहे हैं। आज के डेट में हम बात करते हैं डिजाइनर बेबीज की, हम चाहें तो हमारा जो बेबी है वो किसी पर्टिकुलर फिल्म स्टार से मैच हो सकता है, खैर वो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ एक थ्योरी है आज की डेट में, बट अगर हम जेनेटिक लेवल या प्रोटीन लेवल पर बात करें, तो पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन जो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो, थर्मोस्टेबल बना सकते हैं किसी प्रोटीन को, किसी प्रोटीन को हम मॉडिफाई करके, एंजाइम को मॉडिफाई करके हमको उसको एसिड स्टेबल बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी इसके थ्रू पॉसिबल है। रिसर्च एज यूजुअल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। सिंथेटिक टिश्यूज की बात करते हैं, सिंथेटिक टिश्यूज में कान कट गया है, किसी का हाथ कट गया है, तो ये सारे डिफेक्टिव ऑर्गन्स को रिप्लेस करने के लिए जो हम हार्ट रिप्लेसमेंट के लिए हार्ट चाहिए है, तो लैब में ग्रुप से आज की डेट में तो हम लैब में ब्लड नहीं बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंथेटिक टिश्यू। तो ऐसे सिंथेटिक टिश्यू ब्लड की सिंथेसिस करनी है लैब में, तो कई सारी जेनेटिक स्टडीज की जरूरत है। ब्लड आज भी हमें डोनेट करना पड़ता है, इट्स अ नोबल कॉज, क्योंकि ब्लड आप लैब में नहीं बना सकते, तो ऐसा कुछ कभी पॉसिबल हो पाएगा, तो उसके लिए आज की डेट में रिसर्च जरूरी है, एंड दैट रिसर्च इज obviously possible through multiple copies of DNA। multiple copies of DNA जो है वो क्लोनिंग से आती है।
देन बायोसेंसर्स या डिटेक्शन, बायोसेंसर्स चाहिए, ऐसे सेंसर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर सके। एक छोटा सा सेंसर होना चाहिए कि आपने फूड पार्टिकल में डाला और वो बीप करे कि अरे इसमें तो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम कॉज करने वाला बैक्टीरिया है या कोई वायरस है। तो ऐसे कुछ बायोसेंसर्स जो कि डिटेक्ट कर सके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड में या एनवायरनमेंट में, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो अभी तक हमने इस वेबिनार में जो पढ़ा उसको थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वाज की जीन क्लोनिंग, इसके दो बेसिक तरीके हैं, एक है सेल बेस्ड क्लोनिंग और सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। जो नॉर्मल स्टेप्स हैं सेल बेस्ड क्लोनिंग में वो है एक मॉडिफाइड वेक्टर को बैक्टीरियल सेल या एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर पहुंचाना, उन सेल्स को जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिकॉम्बिनेंट सेल्स को अलग करना, लैब में उनको ग्रो करना, लाइज करके बाहर निकालना हमारे प्लाज्मिड वेक्टर को, उसमें से हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। वन स्टेप मेथड इज पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, जहां पर इस मशीन की हेल्प से हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। बाय 3 स्टेप्स, डीनेचुरेशन जहां पे दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स अलग होती हैं, फिर प्राइमर्स अनील होते हैं सेकंड स्टेप में, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन करके मल्टीपल कॉपीज बनाता है। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पीसीआर जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, रैपिड है, सेंसिटिव है, एक्यूरेट है, कम सैंपल में भी काम हो जाता है इन सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पीसीआर टेक्निक। So this was all from my side. This is my YouTube channel Friendly Biotechnology. यहाँ पर कुछ some of the videos हैं जो relevant हैं आपके इस topic से. You can go to this channel and you can learn some more concepts. So last of all, I would like to thank all the organizers, Deshmukh sir, Patankar sir, Joshi sir, and Narsinghe sir for inviting me for this webinar. If you have any queries, you can raise them. Yes, if some participants have queries, please you may ask to ma'am. You are free to ask. Ma'am, Yes, you are audible. yes, I just wanted to ask you that what is gene mutation, and I heard that the COVID virus is mutates and it is delta set. Is it mutation useful or? सॉरी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या था, आपका क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जीन म्यूटेशन? जीन म्यूटेशन आपकी जीन की पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसिन, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं। अब क्योंकि डीएनए में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो जब ये सीक्वेंस बदल जाती है, एडेनाइन के बाद ग्वानाइन था, अब रेप्लिकेशन के टाइम पे जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन करता है तो कई बार गलती से ग्वानाइन, एडेनाइन के बाद ग्वानाइन लगना था, ग्वानाइन की जगह कुछ और लग गया, थाइमिन लग गया, साइटोसाइन लग गया, जो कुछ भी न्यूक्लियोटाइड, गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो आगे जो डीएनए रेप्लिकेट होगा वो बदल जाएगा, और क्योंकि इस डीएनए के बेसिस पर एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के बेसिस पर प्रोटीन बनता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड बदलने से भी कई बार बड़े बड़े चेंजेस हो जाते हैं प्रोटीन में। इसका एग्जाम्पल है हमारा सिकल सेल एनीमिया डिजीज, जहां पर हीमोग्लोबिन प्रोटीन में एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो बदल जाता है, तो उसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड लग जाता है, अमाइनो एसिड बदल जाता है, अमाइनो एसिड बदलने की वजह से प्रोटीन का पूरा 3 डायमेंशनल शेप बदल जाता है, और हमारे जो नॉर्मल आरबीसीज हैं, ठीक है, उनकी जगह सिकल शेप्ड आरबीसीज हो जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बदलने से कई बार ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, और इस एक न्यूक्लियोटाइड के बदलने को ही म्यूटेशन कहा जाता है। और जो आप कोविड वायरस की बात कर रहे हैं, तो ये रैपिडली म्यूटेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जंप करके बैट से ह्यूमंस में आ गया, इतना सीवियर इन्फेक्शन कॉज किया, और अब भी आगे म्यूटेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दूसरे वेरिएंट्स मिले। अब ये म्यूटेशन नेचर में रेप्लिकेशन के एरर की वजह से, कई बार रेडिएशन की वजह से, यूवी लाइट है, ये म्यूटेटिंग एजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, इनकी वजह से हो जाते हैं। आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने। आपको कुछ मतलब आप कुछ और तो नहीं जानना चाहते थे? No ma'am, thank you. I got my Okay. answer. Okay, thank you. Anyone else? Yes, anyone is interested to ask ma'am?
please ask. Yes, ma'am. Yes, sir. Madam, our fingerprints are unique. Right. Hello. The fingerprints of humans are Unique. different. Why? हाँ. Why? देखिए, हम सभी का जेनेटिक, yes, सिर्फ ma'am, हमारा yes. फिंगरप्रिंट नहीं, फिंगरप्रिंट तो मेजर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, हम अगर हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करें, डीएनए की बात करें, तो हमारा डीएनए जो है वो भी अलग है। मेरा डीएनए आपके डीएनए से मैच नहीं होगा, बट स्टिल मेजर फिजिकल फीचर्स में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम सब डिफरेंट हैं। We all have major body structure एक जैसा है, इंटरनल ऑर्गन्स भी एक जैसे हैं, लेकिन आपने देखा हो कि हमारा एक छोटा सा फेस है, उसमें भी मेजर फिजिकल फीचर्स, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, ब्राउज, बाल, ये सब मेजर रूप से एक ही जैसे हैं, लेकिन बारीक बारीक डिफरेंस हैं जिनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। स्किन के कलर में डिफरेंस होगा, छोटा सा बालों के कलर में डिफरेंस होगा, बालों के स्टाइल में डिफरेंस होगा, स्ट्रेट होंगे, वेवी होंगे, कर्ली होंगे, ब्राउज में डिफरेंट होगा। तो ये जो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, इनको हम वेरिएशंस बोलते हैं, है ना। और यही वेरिएशंस आपके फिंगरप्रिंट में है, और यही वेरिएशंस है डीएनए में भी, और इनको हम बोलते हैं कई बार सिंगल, जो डीएनए में जो डिफरेंसेस है उनको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अलग होते हैं। मेरी बॉडी में एडेनाइन है, आपकी बॉडी में हो सकता है उस जगह पर गुआनाइन हो, लेकिन ये ऐसी जगह पर होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें से 97% ऑफ द जो डीएनए है हमारा वो नॉन फंक्शनल है, सिर्फ 3% ही फंक्शनल है। 97% इज जंक डीएनए या वेस्ट डीएनए है, और उस 97% ऑफ जो जंक डीएनए जिसको वेस्ट डीएनए बोलते हैं, एक्चुअली वो ही कई बार हमारे डीएनए में वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोटे तौर पर मैं ऐसा कह सकती हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू इनटू मच फाइनर डिटेल्स ऑफ दिस, राइट। और कुछ क्वेश्चन हो किसी का? Yes, ma'am. Right. Ma'am, I have a question about COVID. Ma'am, as we know, children can adapt better than older ones. Yes. Right. As we know, children have good adaptive property. Why we can't give them vaccines? And why children's immunity is not good for vaccines yet? सर ये बहुत ज्यादा जेनेटिक लेवल पर ना होकर उनके बॉडीली स्ट्रक्चर्स और उसके ऊपर है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं, सॉरी, जो बच्चे हैं वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, उनको हमें वैक्सीन डिपेंडेंट भी नहीं बनाना है। दूसरा ये है कि उनकी फाइटिंग, क्योंकि दे आर नॉट दैट एक्सपोज टू केमिकल्स, और उनमें जो जुवेनाइल है या वाइटैलिटी है उनकी बॉडी की, जो रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखा होगा कि बहुत छोटे जब बच्चे होते हैं तो वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, या जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, यंगर जो लोग हैं उनको माना जाता है कि वो ज्यादा, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनका इम्यून सिस्टम काफी एक्टिव होता है, केमिकल्स का इतना इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे स्ट्रेसेस नहीं होते हैं बच्चों को, जो वो बाहर खेलते हैं उनको ऑटो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आज की डेट में जो हम स्पेशली वी द ओल्डर पीपल, जो हम 30s के बाद जो लाइफ जीते हैं, जिसमें हम घर में कन्फाइंड होते हैं, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, धूप नहीं लेते, हम बारिश में नहीं खेलते हैं, डस्ट डर्ट से बचते हैं, तो वो सारी चीजें इनफैक्ट हमारी बॉडी को, फिल्टर्ड पानी पीते हैं, हमारी बॉडी को थोड़ा सा वीक बना देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। बच्चे वही चीजें अपने आसपास बहुत ज्यादा मिक्सअप होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, बारिश में भीगते हैं, ये सब कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को ट्रेन कर रही होती है बीमारियों से लड़ने के लिए। बेसिक रीजन वही है। हालांकि इतने लेवल पर बच्चों तक पहुंचना वैक्सीनेशन को इतना आसान नहीं, इसलिए भी एक बैरियर, एक फिल्टर्स डाले हुए हैं ताकि वैक्सीनेशन पहले उन लोगों को मिल सके जो दोज हु आर needy ones, the older ones. Ma'am, one more question. Is it possible that that children will get autoimmunity by COVID? सर ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो कोविड इज अ बिग टॉपिक फॉर रिसर्च। इस पर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देना कि ये होगा ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोविड इज प्रूविंग डिफरेंट फॉर एवरीवन। कोविड जो है वायरस, किसी में, मेरे घर में हम लोगों को मई में सबको इन्फेक्शन हुआ, एंड हम 5 लोग हैं घर में, हम पांचों का जो उस वायरस के प्रति जो बॉडी का रिस्पांस था या जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो सबकी अलग अलग थी। 5 लोगों की बॉडी में अलग अलग चीजें हुई, तो इसलिए कोविड इज टोटली एन एक्सपेरिमेंटल स्टेट पर है। अभी तो कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा है थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा, अभी तो ये स्टेटमेंट भी मतलब आज कुछ होता है कल कुछ होता है, तो वी कैन नॉट से परफेक्टली कि ये होगा या नहीं होगा। दैट ऑल डिपेंड्स टाइम के साथ।
Okay, ma'am. Ma'am, one more question. जी How adenovirus can get the power of I mean, how it will make proteins that will affect humans as a COVID-19, that will spike proteins. How will it get by genome? सर, आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई। Ma'am, how adenovirus can get spike protein gene in its body by COVID-19, COVID virus? अच्छा, मीन्स आप इसकी बात कर रहे हैं कि कोविड की जो स्पाइक प्रोटीन्स की जीन है वो एडिनो वायरस पे ट्रांसफर करने के लिए, सो दैट हम उसके Yes, अगेंस्ट yes, yes. इम्यूनिटी डेवलप कर सके। सो वही Yes. वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पार्ट है, अगर आप उसको वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, ma'am. Yes. तो सर ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, हमें पता ही है हर वायरस के पास उसका कैप्सिड प्रोटीन होता है, कैप्सिड प्रोटीन्स को हम एडिट कर सकते हैं। देखिए, वायरस पूरा तभी इन्फेक्शन कॉज कर पाता है जब पूरा जो वायरस है जेनेटिक मटेरियल उसका एंटर करे एनिमल सेल में। अगर हम वायरस की जो कवरिंग जो कैप्सिड है उसके प्रोटीन्स को हम एज वैक्सीन के जैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उन प्रोटीन्स को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी जो है उन कैप्सिड प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगी और वहीं पे वायरस को किल कर देगी, इससे पहले कि वायरस अपना आरएनए डीएनए जो है हमारे सेल में इंजेक्ट कर सके। तो इसलिए जो कैप्सिड प्रोटीन्स हैं दे आर यूज्ड एज मॉडल, और उन्हीं को एडिनोवायरस में ट्रांसफर करने की शायद आप बात कर रहे हैं। तो कैप्सिड प्रोटीन्स पे अगर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स लगा देते हैं तो जो एक्चुअल वायरस है एडिनोवायरस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इतना हार्मफुल नहीं है। जो कैप्सिड प्रोटीन्स है दे विल एक्ट एज एंटीजेंस इन आवर बॉडी, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेगी ताकि हमारी बॉडी ट्रेन हो सके, इम्यूनाइज हो सके, और जब एक्चुअल वायरस एंटर करने की कोशिश करेगा हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेगा, तो हमारी बॉडी की रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं, जो ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज हैं, उनसे फाइट कर सकेंगी। आई होप आई एम क्लियर, जो आप पूछना चाह रहे थे मैंने सही समझा। और Okay, I think the questions are over. right. Is there anyone? Last questions. Is there anyone? The time is up now. So, thank Sir, one last question. Sure, बोलिए। मैम, अगर कोई स्पीसीज है जो क्या अभी डिसअपीयर हो गई है अर्थ से, क्या हम डीएनए क्लोनिंग से उसे वापस ला सकते हैं? हो सकता है। आपने मतलब मैं जुरासिक पार्क मूवी सीरीज देखी होगी, शायद क्वेश्चन वहीं से आया है। तो उसमें ऐसा डिस्कवरी पे दिखाया था। हाँ जी, एक्चुअली वो हम फिल्म फिक्शन की भी बात कर सकते हैं, यंगस्टर्स हैं, तो उसमें ऐसा दिखाया था कि डायनासोर्स जो हैं वो क्योंकि नहीं है अब अर्थ पे, तो मतलब दैट वाज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, है पॉसिबल, लेकिन अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, प्रैक्टिकली अभी नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा। बट अगर कोई एक्सटिंक्ट स्पीशीज है तो हाँ, उनका अगर डीएनए हमें मिलता है तो हम लैब में आर्टिफिशियल ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो टेक्निक है भी बहुत ही ज्यादा नियोनेटल स्टेज पे है। मैं बोलूंगी कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल हर्डल्स हैं जो भी क्रॉस करना बाकी है। हालांकि डिस्कवरी पे या मूवीज में ऐसा आपको दिखाया जा रहा है, जो जुरासिक पार्क मूवी है वो पूरी इसी पे बेस्ड है कि उनको एक फॉसिल मिलता है, फॉसिल में एक मरा हुआ मॉस्किटो मिलता है, उस मॉस्किटो के स्टमक में से वो ब्लड निकालते हैं, वो ब्लड एक डायनासोर का होता है, तो डायनासोर के ब्लड के सेल्स में से उसका डीएनए निकालते हैं जो डीएनए डायनासोर का है, और उसके बेसिस पे पूरा डायनासोर कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट देयर आर लॉट मेनी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल हर्डल्स टू दिस टेक्निक। ये अभी प्रैक्टिकली अभी एज सच इतना पॉसिबल नहीं हो पाया है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली अभी कुछ भी अचीव नहीं किया है अभी। तो हम जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम ब्लड ही लैब में नहीं बना पा रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, तो सिंथेटिक ब्लड नहीं मिलता है आपको, तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। ओके, Okay. Thank you, ma'am, for a very informative, very wonderful, and very amazing lecture. It was very informative for our students. So you have elaborated what is gene cloning, what are the different steps, what are the different applications, and definitely, ma'am, this has helped a lot for our students to enhance their knowledge. Thank you, ma'am, for giving your valuable and precious time to us.
Now I would like to hand over this to Dr. Hamde sir for expressing vote of thanks. Dr. Hamde sir, please. Now I am coming towards last part of the Honorable our graduate invited that ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked हमदे सर आवाज येत नाहीये. Hello, हा. Honorable President of webinar, Dr. A.M. Deshmukh sir, Dr. Patankar sir, Dr. R.D. Joshi sir, our most valued invited guest, Dr. Sweta Agrawal madam, and ladies and gentlemen. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion of webinar on gene cloning and its applications. I, on behalf of organizing committee of webinar and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to today's speaker of webinar, Dr. Sweta Agrawal, for gracing your important work and sharing with us your opinions on gene cloning and its applications. A big thank to you, Dr. Sweta Agrawal, madam. I am also thankful to Dr. Patankar sir for his valuable guidance. I am thankful to Dr. A.M. Deshmukh sir, Chairman Microbiology Society, Dr. R.D. Joshi sir, Principal of the college, for their constant support and motivation. I must mention our deep sense of appreciation to A.P. Narsinge sir, Organizing Secretary of the webinar. I am also very thankful to all participants of webinar for their patient listening and interactions. We are all inspired by your great contribution. Thank you very much. With this, I declare today's program is over. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, everyone.